A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed a lots of the numerical as well as the theoretical topic related to the preparation of financial statement of sole proprietorship. And you can see that a lots of accounts as well as the adjustment are required to prepare at the time of the preparation of the financial statement, that is trading account, profit and loss account and the balance sheet. As well as in the last few videos we discussed at least 16 to 17 adjustments which are required to adjust at the time of the preparation of the financial statement, like a closing stock, outstanding expense, prepaid expense, accrued income, advance income, as well as the interest on capital, interest on drawing, charity, donation, as well as the goods and service tax. So in this video, first of all, we revise as well as first of all we recall all the numerical problems which are related to the 1 to 3 marks and expected to come in your upcoming examination. So with the help of these questions, we can revise and recall all the previous formulas which are based on the preparation of the financial statement, that is in gross profit, net profit, operating profit, and the calculation of the provision for bad debts, provision for discount on debtor. So without creating any delay, let's we move to the some of the important practical problems which are related to the short answer type question. So let us start the questions. The first question which are related to this nature, that is in the according to the question there will be given the trial balance, okay, and the trial balance value is amount debit and amount credit. In the amount debit, the amount of the debtor will be a 30,000. Okay, as you know very well, debtor is a personal, it is a personal account, as well as the debtor means the person to whom goods sold on credit, यानी वो person जिसे हमने goods sold किया है credit पे, so वो मेरी assets है, and according to the assets you know very well, real account को हम लोग क्या करते हैं 30,000 को डेबिट करते हैं. And this is an information which are shown in the trial balance, that is in trade rupees 30,000. The next information is after creating a provision for bad debts at the rate of 5% on debtor, and the question is after creating a provision for bad debts, a provision for bad debts at the rate of 5% on debtor, at the rate of 5% on debtor, at what value of debtor shown in balance sheet. So this is a question कि ये डेटर दिया है 30,000 और आपको कह रहा है कि प्रोविजन बनाओ. कितना प्रोविजन बनाओ? प्रोविजन बनाओ 5% ऑन डेटर, ठीक है, और प्रोविजन बनाने के बाद आप ये बताइए कि कितना वैल्यू आप बैलेंस शीट के एसेट्स में एज एन डेटर शो करोगे. सो मैं दोनों जगह इफेक्ट दिखा देता हूं. व्हेन वी प्रिपेयर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या जाता है एडजस्टमेंट का? एक जाता है फर्स्ट वन इज बैड डेब्ट्स, जो इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है. दूसरा जाता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. सो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ गिवन है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स. So what is the value of provision for bad debts according to this question? That is in 30,000 5%. 30,000 का कितना परसेंट? 5%.
So the value of the provision for bad debts is 1500. And when we prepare the balance sheet of this question, so you can see that in the asset side of the balance sheet, first of all we write down the amount of the debtor, which is in 30,000. डेटर की वैल्यू कितनी है 30,000 और उसमें से माइनस क्या करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दैट इज इन 15,000. सो बैलेंस शीट के एसेट्स में डेटर की वैल्यू कितनी शो होगी 2,800. तो आपको दोनों का आंसर मिल गया कि हम पीएल अकाउंट में कितना शो करेंगे ओनली 1500 और बैलेंस शीट में कितना शो करेंगे 28,500. सो अगर आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछे सो यू कैन गिव द आंसर वेरी इजीली कि सर इन द पीएल अकाउंट डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे 1500 एंड इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट वी राइट डाउन दी 28,500. Okay, so this is the first question. Now we are moving to the one more question. Please listen carefully. As you can see that we require lots of space for the working for the question. So now we are moving to the next question, and the question is operating profit earned by Geet in 2019-20 was 8,50,000. The operating profit earned by Geet in 2019-20 was rupees 8,50,000. And the next information, its non-operating income were 75,000. Non-operating expense were income rupees 75,000 and non-operating expense were rupees 1,87,500. Calculate profit earned during the year. Profit means the net profit. Calculate net profit earned during this year. As you know very well, what is the formula of the net profit? Net profit may be calculated by the two way. नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का दो तरीका होता है. पहला तरीका होता है ग्रॉस प्रॉफिट से. ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस और प्लस करते हैं इनडायरेक्ट इनकम. द फर्स्ट फॉर्मूला by which we calculate the net profit. The second formula which are related to the net profit, that is with the help of the operating profit. If in any question there will be given information regarding the net operating profit, so operating profit plus non-operating expense and minus non-operating income. जस्ट अपोजिट करते हैं कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं प्लस, सॉरी फॉर दैट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करते हैं माइनस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करते हैं प्लस. क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होती है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटाएंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेटर में हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर लिया होगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर लिया. ऑलरेडी ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हो जाता है और ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं और ये इस बात पे ध्यान नहीं रखते हैं कि वो ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है. लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते वक्त हम लोग क्या करते हैं ग्रॉस कोई भी प्रॉफिट है उसमें से हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ही माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करते हैं. सो बेसिकली द फॉर्मूला इज अप्लाइड इन दिस सिचुएशन, दैट इज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम. सो हम इसको यहां सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से.
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 8,50,000, ये हो गया। दूसरा उसमें से माइनस क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,87,500, उसको माइनस कर लिया। और प्लस क्या करना है आपको, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दैट इज 75,000, और फिर उसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, बट इट क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अ लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन when we solve such types of the question. Then the answer will be a 7,37,500. 7,37,500. So please note down these solution in your copy properly, and thereafter we will move to the next part. Okay, so now let's we revised the concept that is an गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन एडजस्टमेंट आइटम। एज यू नो वेरी वेल, लास्ट कई वीडियो से हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, बट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएसटी ऑन एडजस्टमेंट में, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम के केस में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कैसे शो करते हैं, और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहले आप उसको नोट डाउन कर लो और उसके बाद हम लोग उस पर मूव ऑन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट adjustment, that is in goods on outstanding expense, and you can see there are lots of explanation regarding the outstanding expense. Okay, so now we are moving to the effect of GST on adjustment on outstanding expense. Basically GST on आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बेसिकली अभी आपने एंट्री देखी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की क्या होती है, दैट इज एन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अभी जस्ट आपने देखा कि ये एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ द while we pass the entries related to the outstanding expense. But when we are talking about the GST on outstanding expense, so the entry will be a expense account debit, input C GST account debit, input S GST account debit. Okay, and the effect of GST on outstanding expense will be a expense पे क्या हो जाएगा आपका, इस सिचुएशन में ये जो एक्सपेंस है इट विल बी एडेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन रिलेटेड एक्सपेंस। इनपुट सी जीएसटी एंड एस जीएसटी विल बी एडेड टू द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बिकॉज आपको पता है कि इनपुट सी जीएसटी एंड एस जीएसटी को हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग द जीएसटी विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अभी हम लोगों ने इस पे एग्जांपल भी डिस्कस किया है, तो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। सेकेंड विल बी अ जीएसटी ऑन प्रीपेड एक्सपेंस। अब आप ये सोचो कि आपने जीएसटी पे कर दी, जीएसटी ऑन प्रीपेड एक्सपेंस, तो अब आप खुद ये समझ लो, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एनी एक्सपेंस विच आर नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस। कोई भी एक्सपेंस जो ड्यू हुआ ही नहीं और आपने उसे पे कर दिया, इसका मतलब आपने जीएसटी भी पे कर दिया होगा। इट मींस एट द टाइम ऑफ द प्रीपेड एक्सपेंस जीएसटी विल नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट द जीएसटी ऑन प्रीपेड एक्सपेंस। यानी कि पहले ही हमने एक्सपेंस भी पे कर दिया है, तो पहले हमने जीएसटी भी पे कर दिया हो, तो इस सिचुएशन में हम जीएसटी को इंक्लूड नहीं करेंगे। So there is a no requirement of adjustment of GST on prepaid expense because GST is already paid. ठीक है। Third will be a GST on accrued income. GST on accrued income. What is an accrued income? Accrued income means any income which are earned but not received. यानी जो इनकम हमें मिल गई है लेकिन हमने उसको अभी अर्न नहीं किया, विच विल बी नोन एज एन एक्रूड इनकम।
Okay, what is an accrued income? Any income which is earned but not, sorry, any income which is not earned but received, which is known as an accrued income. और इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में. जर्नल एंट्री विल बी accrued income account debit to income. और आपको पता है इस पे हम जीएसटी चार्ज करते हैं क्योंकि इनकम अभी आपको मिली नहीं है, सो आप इस पे जीएसटी इंक्लूड करोगे. सो द एंट्री विल बी आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी. सो जनरल एंट्री क्या होगी? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी. क्लियर? और इसको कहां शो करोगे? एक्रूड इनकम को शो करोगे इन दी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और जो पर्टिकुलर इनकम है उसे आप ऐड कर दोगे इन क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, बिकॉज इनकम को हम कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में. आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी को हम शो करेंगे इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. और जब हम फोर्थ एडजस्टमेंट की बात करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 4 इज एडवांस इनकम. Adjustment number 4 is advance income. Just opposite of accrued income. What is an advance income? Any income which is not earned. कोई इनकम हमने कमाई नहीं है लेकिन हमें एडवांस में मिल गई है. Accrued क्या था? हमने कमाया नहीं लेकिन हमने कमाया लेकिन हमें मिली नहीं. Accrued income. Advance income, income which is not earned but received in advance. इसे हम लोग बोलते हैं accrued income, unaccrued income, unearned income. बहुत सारे नाम होते हैं एडवांस इनकम के. और इसकी जनरल एंट्री देखो, बेसिकली अगर हम जीएसटी के रिस्पेक्ट में बात करें तो एडवांस इनकम पे जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी आपको जीएसटी मिल चुका है. सो दो ऐसे आइटम्स हैं बेसिकली जिसपे जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं होता. अगर प्रीपेड एक्सपेंस किया है या एडवांस इनकम मिली है किसी भी सोल प्रोप्राइटर को, सो इन दिस सिचुएशन देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू एडजस्ट. देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू एडजस्ट द जीएसटी ऑन प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूड एंड एडवांस इनकम. यानी कि अगर एग्जाम में ये दोनों एडजस्टमेंट गिवन हो और इस पे जीएसटी चार्ज करने को बोले, तो सीधे सीधे कहना कि सर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है. क्यों नहीं जरूरत है? बिकॉज हमें ऑलरेडी क्या हो चुका है? जीएसटी मिल चुका है, हमने जीएसटी ऑलरेडी पे कर दी है. ओके. और एक छोटा सा टॉपिक बचता है, वो है जीएसटी ऑन एबनॉर्मल लॉस. जिसको हम एग्जांपल से समझेंगे. ओके. So let's we solve the questions related to the GST on adjustment item. The question is pass necessary journal entries and show the effect of following adjustment. Okay, so the question is pass the necessary journal entry and show the following adjustment. Show the effect of following adjustment. Show the effect of following adjustment on financial statement. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज इन ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में सारा का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम लोग को मॉनिटर करना है, देखना. द फर्स्ट विल बी अ आउटस्टैंडिंग रेंट ₹15,000 still outstanding and 6% CGST and 6% SGST will be there.
ठीक. नंबर सेकेंड, कमीशन earned but not received rupees 11,200 including 6% CGST and 6% SGST. ओके. एंड नंबर थर्ड, क्योंकि काफी टफ होता है इस तरह के क्वेश्चंस. ठीक है. नेक्स्ट, लॉस बाय थेफ्ट ऑफ गुड्स रुपीज 18,000 including on which 12% IGST will be charged. थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेगा. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग रेंट है 15,000 रुपए, जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है. रेंट जो है, इसको आप आउटस्टैंडिंग वर्ड भी नहीं यूज करेंगे तो भी काम चल जाएगा, कि rent rupees 50,000 is still outstanding and 6% CGST and 6% SGST will be there. Second, commission earned but not received, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? accrued commission. कितना है? 11,200. उसमें इंक्लूड क्या है? 6% CGST और 6% SGST. और लास्ट है लॉस बाय थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया गुड्स, कितने का? 18,000, जिसपे आपने 12% IGST चार्ज किया था. यानी उस 18,000 का जो वैल्यू है कॉस्टिंग रुपीज होना चाहिए. उस गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी? 18,000. सो क्वेश्चन को समझना और फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना. देखिए सबसे पहला इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में. द फर्स्ट वन इज कि रेंट आउटस्टैंडिंग है. पहले तो इसकी जनरल एंट्री पास करनी है और फिर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट दिखाना है. ओके. सो सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, सो सॉल्यूशन नंबर 1 फर्स्ट का, पहले हम लोग जनरल एंट्री पे बात करेंगे. जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री विल बी, अभी मैंने आपको बताया था, रेंट अकाउंट डेबिट कितना है? 15,000 टू आउटस्टैंडिंग रेंट. बट यू नो वेरी वेल उस रेंट पे क्या लगना था? 6% CGST और 6% क्या लगना था? SGST. और रेंट एंड एक्सपेंस के केस में हम लोग क्या करते हैं? इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट. सो 15,000 का 6% क्या करेंगे हम लोग? उस पर CGST SGST चार्ज करेंगे. एंड टोटल आउटस्टैंडिंग रेंट विल बी 16,800. सो एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट 15,000, इनपुट CGST डेबिट 900, इनपुट SGST 900 एंड टू आउटस्टैंडिंग रेंट इज 16,800. इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट नंबर 1, जो रेंट है रुपीज 15,000, इसे क्या करोगे? एडेड टू PL अकाउंट इन डेबिट साइड. यानी कि जो 15,000 रुपए रेंट आपका है उसे आप ऐड करोगे PL अकाउंट में डेबिट साइड में. पहला इफेक्ट समझ में आ गया? ठीक है. सो ये पहला हो गया आपका फर्स्ट. सेकेंड इफेक्ट क्या होगा अगर हम लोग बात करें तो? सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि जो इनपुट CGST और इनपुट SGST है, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST, इसे हम लोग क्या करेंगे? बिकॉज इनपुट CGST एंड इनपुट SGST कहां दिखता है? इट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. सो इसे क्या करेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में ऐड कर देंगे. एंड कितना वैल्यू ऐड करेंगे? 900 एंड 900 रिस्पेक्टिवली. 900 ईच ऐड करेंगे क्योंकि वो सब कहां शो होगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में. एंड द थर्ड इफेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज एन आउटस्टैंडिंग रेंट. एज यू कैन सी दैट 16,800. सो ये 16,800 ऐसे हम लोग क्या करेंगे? विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ
बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग शो करेंगे 16,800 एज आउटस्टैंडिंग रेंट। सो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट है जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 जगह नहीं 3 जगह पड़ता है। एज यू कैन सी दैट एसेट्स में पड़ रहा है, लायबिलिटी में पड़ रहा है और पीएल अकाउंट में भी पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए टफ साइड पड़ जाता है। सेकंड आते हैं सेकंड वाले में, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। कमीशन अर्न किया लेकिन मिला नहीं, कितना 11,200, जिसमें इंक्लूड है 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी। अभी याद होगा आपको कुछ दिन पहले का वीडियो जिसमें हम लोगों ने इस बारे में डिस्कशन किया था कि जिसमें इंक्लूड होता है तो हम पहले उस वैल्यू को एक्सक्लूड करते हैं। कैसे एक्सक्लूड करते हैं, पहले तो एंट्री पास कर लेते हैं। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव 11,200 इंक्लूडिंग 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी। तो सिचुएशन में पहले एंट्री क्या होगी, एंट्री विल बी एक्रूड कमीशन डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट CGST to output SGST and the value of the commission is नहीं पता, but accrued commission is 11,200. Why? Because question is saying that including 6% CGST and 6% SGST. तो 6% किसका चार्ज होता है, कमीशन का चार्ज होता है, बट हमें कमीशन के बारे में पता नहीं है। तो इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, लेट एज्यूम करेंगे, लेट कमीशन इक्वल्स टू 100। तो CGST कितना होता, CGST will be 6 and SGST will be a 6 and total accrued commission is 112. So accrued commission is rupees 11,200 किसके बराबर होगा, 11,200 किसके इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट होगा दैट इज 112। सो 112 रुपए के बराबर होगा। तो यहां आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 11,200 इज इक्विवेलेंट टू 112 into 100 बिकॉज हमें क्या फाइंड आउट करना है, कमीशन। So the value of the commission is 10,000. Output CGST is 6% of commission, that is 600, and output SGST will be 600 of the total commission. So accrued commission is 11,200, to commission 10,000, to output CGST 600, to output SGST 600. And the effect of such transaction, the first one accrued commission को कहाँ लिखते हैं, in the assets side of बैलेंस शीट। किसको लिखेंगे, एक्रूड कमीशन को कितना लिखेंगे, 11,200। दूसरा ये जो कमीशन है इसे हम लोग क्या करेंगे, कमीशन है आपका ₹10,000, इसे आप ऐड करोगे क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। तो कमीशन ऐड करना है एंड आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट बिकॉज आउटपुट जो होता है हम पे करते हैं। सो आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हम 600 ईच क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या उस आउटपुट अगर पहले से होगा तो उसमें ऐड करेंगे, अगर पहले से कुछ नहीं हुआ तो उसको ऐड नहीं करेंगे। सो यू कैन सी दैट वी रिक्वायर्ड अ लॉट्स ऑफ स्पेस व्हाइल वी सॉल्विंग such type of the question. Okay, the third one is loss by theft of goods costing rupees 18,000 on which 12% IGST will be charged। यानी गुड्स था जो लॉस बाई थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, लॉस हो गया, कितने का गुड्स लॉस्ट हो गया, 18,000 रुपीज का, जिसपे 12% IGST चार्ज करता है। तो उसको कैसे शो करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका सॉल्यूशन, बट मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन आर गिवन क्वेश्चन इटसेल्फ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सब सॉल्यूशन पड़ा ही रहता है। देखो आप इसमें कह रहे हैं लॉस बाई थेफ्ट हुआ 18,000 रुपए का, जिसपे 12% IGST चार्ज हुआ था। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड 1, लॉस्ट हो गया। तो एंट्री क्या हम लोग करते हैं, बेसिकली एंट्री करते हैं लॉस बाई लॉस बाई थेफ्ट है ना। सो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट, कितने का थेफ्ट हो गया, 18,000 रुपए का। ओके, इस पे क्या जीएसटी इंक्लूड है, नहीं सर। सो टू परचेज, अब लॉस बाई थेफ्ट 18,000 का नहीं हुआ, परचेज जो गुड्स था वो 18,000 का गया। यही थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें टोटल लॉस कितना हुआ होगा,
18,000 प्लस जीएसटी, जिसमें से परचेस का कितना गया 18,000 और उस पर जीएसटी कितना चार्ज था 18%। सो एट द टाइम ऑफ द परचेस हमने क्या चार्ज किया होगा, इनपुट जीएसटी। सो जब परचेस से रिटर्न रिलेटेड कोई लॉस होता है तो इनपुट आईजीएसटी को ही क्रेडिट करते हैं, ऐसा नहीं कि आउटपुट आईजीएसटी को क्रेडिट करेंगे। सो 18,000 का 12% हम लोग चार्ज करेंगे एज एन, कैंसिल कर देंगे एज एन इनपुट आईजीएसटी, बिकॉज जब परचेस किया था तो इनपुट आईजीएसटी चार्ज किया था, बट वही गुड्स जब लॉस्ट हो गया बाय थेफ्ट, बाय फायर, एनी काइंड ऑफ द लॉसेस, तो उसको इनपुट आईजीएसटी को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। 18,000 का 12%, यानी आईजीएसटी से उतनी वैल्यू डिडक्ट हो जाएगी। सो 118 into 12 is 0.62160 and total loss by theft is 20,160। एडजस्टमेंट इफेक्ट क्या क्या होगा, एंट्री तो समझ में आ गई होगी। जैसा आप देख रहे हैं लॉस बाई थेफ्ट हम लोग कहाँ शो करेंगे, पहला इफेक्ट इसका ये पड़ेगा, पहला इफेक्ट पड़ेगा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस बाई थेफ्ट शो करेंगे हम लोग 20,160। सेकेंड इफेक्ट क्या पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में से माइनस कर देंगे 18,000, क्योंकि कितने का गुड्स चला गया 18,000। और तीसरा इफेक्ट पड़ेगा दैट इज एन इनपुट आईजीएसटी के फॉर्म पे, दैट इज बैलेंस शीट के एसेट्स में यू कैन नो वेरी वेल इनपुट आईजीएसटी विल बी शोन। सो ऐड नहीं करेंगे, इसको डिडक्ट करेंगे, इनपुट आईजीएसटी में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2,160। डोंट वरी, अब इस पोर्शन को हम लोग और अच्छे से क्लियर करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। ओके, सो इन दिस टुडेज वीडियो हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, विच आर बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, एज वेल एज वी डिस्कस द एडजस्टमेंट एंट्रीज which are related to the goods and service tax which are related to the adjustment entries, क्योंकि कुछ adjustment entries पे goods and service tax लगता है, like an outstanding, prepaid, accrued and advance, loss by theft, loss by fire. Okay, so I hope today we cleared all the things very easily. आज के लिए इतना ही. Okay, so take care.